کریں آپ کو بتائیں تحریک عدم اعتماد پر مکمل اتفاق اور یکسوئی ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آئیں گے۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا نائل حکمرانوں کا جانا ناگزیر ہو چکا۔ اختر مینگل کہتے ہیں ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، پی ڈی ایم نے کسی حد تک اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا، بلوچستان کے جائز مطالبات کو پورا کیا جائے۔ عدم اعتماد لانے کی تیاری اپوزیشن نے سرگرمیاں تیز کر دی۔ سیاسی رابطے جاری، سردار اختر مینگل کی لاہور آمد، شہباز شریف سے ملاقات، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور عدم اعتماد پر تبادلہ خیال۔ ملاقات کے بعد سردار اختر مینگل کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر مکمل اتفاق اور یکسوئی ہے، پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آئیں گے، نااہل حکمرانوں کا جانا ناگزیر ہو چکا۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ اختر مینگل پی ڈی ایم کا حصہ ہیں۔ اختر مینگل سے ملکی سیاسی معاشی صورتحال اور تحریک عدم اعتماد پر بات چیت ہوئی۔ آج مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، حکومت نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی۔ ہم نے آج چونکہ مسلم لیگ نون اور بی این پی مینگل پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اس حوالے سے ہم نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اصولی فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہماری جو ہوم ورک ہے اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ اس حکومت بدترین حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے آج عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے، مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ سردار اختر مینگل نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں۔ شہباز شریف سے عدم اعتماد کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ بلوچستان کو جس طریقے سے نظر انداز کیا گیا وہ بھی بیان کیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں بلوچستان کے لوگوں میں مایوسیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پی ڈی ایم کا ہم حصہ ہیں اور نہ کہ صرف پی ڈی ایم کا حصہ ہیں بلکہ ہاؤس میں بھی میاں صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، اور آج جس موضوع پر بحث ہوئی ہے یا بات چیت ہوئی ہے وہ ظاہر نے آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے بلوچستان کو جس طریقے سے نظر انداز کیا گیا ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا ہم بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن اب وقت یہ ہے کہ زیادہ دیر نہ ہو، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگوں میں مایوسیاں اور نفرتیں جو بڑھتی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے سیاسی رابطے بڑھا دیے۔ کل کراچی سے اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے بلاول بھٹو کا اعلان، کہا ہمارا احتجاج ایک غیر جمہوری حکومت پر جمہوری حملہ ہے، وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں تو مارچ اور عدم اعتماد کی ضرورت نہیں، حکومت سے نجات تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، عدم اعتماد تحریک کے معاملے پر تمام جماعتوں کو ایک پیج پر آنا پڑے گا، اپوزیشن کی جدوجہد سے عوام کو امیدیں وابستہ ہیں۔ تو مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے، اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ملک کا مسائل حل کر سکے، وہ اپنا اتحادی کو ساتھ لے آ سکے، وہ سپورٹ کے بغیر حکومت میں رہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا پہنچنے سے پہلے اب خود کچھ کرے، ورنہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں۔ ہم سب کا امید ہے کہ اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے تو خان صاحب یہ عدم اعتماد نہیں جیتے گا۔ ابھی تک ہمیں کوئی فون کالز وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں قوم سڑکیں اور پل سے نہیں کردار سے بنتی ہیں۔ سابق حکمرانوں نے ذاتی مفاد کی سیاست کی، کہا زرداری صاحب شاہ محمود سندھ میں ہیں، میں بھی آ رہا ہوں۔ خوف صرف خدا کی ذات کا ہو، کسی انسان کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہ ہو، اور جو سمجھے کہ اس کی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ طاقت یا اللہ کی رضا ہے یا پاکستان کے عوام کی مدد ہے، اسی طاقت پر یقین کرنے والا اس سے بڑے فیصلے کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے آپ سب کا سر بلند کیا فخر سے، انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کرے گا۔ آپ سب کا شکریہ ساتھ آنے کا، عمران خان کا ساتھ دینے کا شکریہ، ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی مل کر اسلام آباد کو اور پاکستان کو بہتر سے بہتر بناتے جائیں گے۔ اور زرداری صاحب سن لو، تحریک انصاف آپ کے پیچھے سندھ بھی آ رہی ہے، شاہ محمود قریشی پہنچ چکے ہیں، کل انشاءاللہ میں بھی آ رہا ہوں۔
चेयरमैन सेनेट की चौथी शुजात परवेज इलाही से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। चेयरमैन सेनेट ने शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया। परवेज इलाही पुरअज़्म हैं, कहते हैं पार्लिमानी रिवायात पामाल नहीं होने देंगे। चेयरमैन सेनेट की चौथी शुजात परवेज इलाही से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। चेयरमैन सेनेट ने शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया। पार्लिमानी रिवायात पामाल नहीं होने देंगे। नून लीग के साथ अरकान असम्बली हुकूमती अरकान के साथ राब्ते में है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पीटीआई का नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान से राब्तों का फैसला। राब्तों के लिए वफाकी वुज़रा को अहम टास्क सौंप दिया गया। वुज़रा इनफरादी तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान से राब्ता करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों के अरकान से राब्ता किया जाएगा। तमाम इत्तेहादी इमरान खान के साथ खड़े हैं। परवेज खटक कहते हैं अपोजिशन का ड्रामा फ्लॉप हो चुका है। नौशहरा में कहा उन्होंने, परवेज इलाही हमारे मुखलिस इत्तेहादी हैं। अपोजिशन हमारे इत्तेहादियों को तोड़ नहीं सकती। अपोजिशन की ईंट से ईंट बजा देंगे। अपोजिशन के साथ एमएनएज मेरे साथ राब्ते में है। हमारा कोई एमएनए कहीं नहीं जा रहा, सब अफवाहें हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक एतमाद कब पेश होगी, फैसला नवाज शरीफ ने करना है। कामयाबी के बाद नवाज शरीफ का फैसला जो है वो वज़ीर आज़म का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों में राब्ते होते हैं। फोन और इशारे आने बंद हो गए। पीटीआई के कई लोग नवाज शरीफ के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म भी नवाज शरीफ के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कौन बनेगा, वज़ीर आला कौन बनेगा, ये सारे फैसले जो हैं ये अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ के इख्तियार में हैं। वज़ीर आज़म जो है वो भी इस वक्त बैठा यही देख रहा है कि मियां नवाज शरीफ क्या फैसला करते हैं। अगर वो फैसला जो है वो उनकी सोच के मुताबिक नहीं करते तो फिर वो खुद कुछ हमला करने के लिए जो है वो तैयार बैठे हैं। अपोजिशन अत्म एतमाद की तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे रोज न्यूज के नुमाइंदा मोहम्मद एजाज खान का पीटीआई रहनुमा उस्मान डार से सवाल। अपोजिशन की शक्लों पर खुद एतमादी दिखाई नहीं दे रही। अपोजिशन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, उस्मान डार ने जज्बाती जवाब दिया, जबकि कहा अपोजिशन करप्ट है। लाए जा रहे हैं अपोजिशन के लिए कि हम आवाम के मफाद में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या कहना चाहेगा हुकूमत को? देखिए, मैं आपको भी मुफ्त मशवरा दूंगा और रोज चैनल को भी कि अपना एयर टाइम इस नालायक तरीन अपोजिशन पे जाया ना करें। इस अपोजिशन की शक्लें देखें, इनकी शक्लों पे आपको कोई खुद एतमादी नजर नहीं आएगी। जब इनमें खुद एतमादी नहीं है तो ये कैसे तरीके में एतमाद ला सकते हैं? जो हाथ लूट मार करके इस मुल्क में करप्शन कर करके कमजोर हो चुके हों, वो एक हुकूमत तो क्या मट्टी का मादू भी नहीं गिरा सकती। एजाज एहसन कहते हैं अपोजिशन जमातों का भी मसाइल का सामना है। पीटीएम वालों ने पहले तो हमारा मशवरा ही नहीं माना। पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया पहले पंजाब में तब्दीली लेकर आए। ये कहते थे हमने इस्तीफे देने हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और इन्वेस्टिगेटर कराची मुर्सा वहाब कहते हैं इमरान खान ने जाना और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आना है। हकीकी सियासी जमातें अवाम के ताउन से चलती हैं। सेहत कार्ड कोई असूली मंसूबा नहीं। उसको बताना है तुम्हें जाना है, उसको जाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी को आना है। आप लोग साथ हैं बिलावल साहब के साथ हैं। कराची से जाएंगे, हैदराबाद से जाएंगे, बदीर से जाएंगे, लाड़काना से जाएंगे, दादू से जाएंगे, रहीम यार खान से जाएंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के साईं सरकार परवार हलीम आदिल शेख कहते हैं जरदारी माफिया सिंध के लिए अली बाबा 40 चोर की तरह हैं। हुकूक सिंध मार्च सिंध के अवाम को जगाने के लिए है। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया, कहा बिलावल को जवाब देना होगा। मैं सिंध के अवाम से कहता हूं, जहां जाए इनसे पूछो कि हमारे सिंध को एड्स क्यों लगाई। जहां से गुजरे इनसे पूछो कि हमारे बच्चों को कुत्तों से क्यों कटवाया। जहां से गुजरे वहां पूछो कि हमारी स्टूडेंट्स क्यों महफूज नहीं है यूनिवर्सिटीज में। निमरता कुमारी को खुदकशी कत्ल करके क्यों लटकाया गया। नौशीन शाह को कत्ल करके क्यों लटकाया गया। जहां से गुजरो इनसे पूछो कि थरपारकर में इमरान खान साहब कार्ड दे सकते हैं। थरपारकर में हजारों बच्चे मर गए। बिलावल जरदारी जवाब दो, आसिफ जरदारी जवाब दो।
वजीर आला पंजाब से वजीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं की अपोजिशन के इंतशार की सियासत की मजम्मत, अपोजिशन के मनफी हथकंडों का डट कर मुकाबला करने के अज़्म का इज़हार। सियासत में मनफी रवैये मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। ये लोग अदम एतमाद की बातें सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए कर रहे हैं। अपोजिशन की आकबत नामदेश अनासिर ने अदम एतमाद को खेल समझ रखा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी की उमूर, सियासी सूरत-ए-हाल और रावलपिंडी में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन की इंतशार की सियासत की मजम्मत की और अपोजिशन के मनफी हथकंडों का डट कर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार किया। उस्मान बुज़दार का कहना था, अपोजिशन सिर्फ इक्तदार की खातिर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रही है। जिन्हें शौक है वो अदम एतमाद ले आए, घबराने वाले नहीं। अपोजिशन को इल्म है कि हुकूमत को नंबर गेम में सबकत है। शेख रशीद ने कहा कि ये लोग अदम एतमाद की बातें सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए कर रहे हैं। अपोजिशन के आकबत नामदेश अनासिर ने अदम एतमाद को खेल समझ रखा है। नाजुक हालात में मनफी सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में हुकूमत मजबूत है और मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं, पीडीएम इख्तिलाफात का शिकार लॉन्ग मार्च के लिए तारीखें बदल रही हैं। फजलुर रहमान और पीडीएम में शामिल जमातें तज़ब्बुब का शिकार, अपोजिशन को खतरा है 6 माह में मईशत बेहतर हो जाएगी। बोले, एहतजाज और लॉन्ग मार्च पीडीएम का जमहूरी हक है, मगर अवाम उनके साथ नहीं। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन की तबीयत नासाज है। जहांगीर तरीन खान तिब्बी चेकअप के लिए लंदन चले गए। तमाम दोस्त मुत्तहिद और राब्ते में हैं। तरीन का ग्रुप को पैगाम, हुकूमत और अपोजिशन की तरीन के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार, सेहतियाबी के लिए दुआ। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन तबीयत की नासाजी के बायस चेकअप के लिए लंदन चले गए। जहांगीर तरीन एक हफ्ता लाहौर के निजी अस्पताल में जेर इलाज रहे। कुछ रोज काबिल तबीयत बेहतर होने पर वो अस्पताल से घर मुंतकिल हुए। अब जहांगीर तरीन लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे। वो एक हफ्ता लंदन में रहेंगे। जहांगीर तरीन इससे पहले भी बरतानिया में इलाज और चेकअप के लिए जाते रहते हैं। ऑन चौधरी के मुताबिक जहांगीर तरीन ने जाने से पहले ग्रुप के लिए पैगाम दिया कि वो चेकअप के लिए जा रहे हैं। तमाम दोस्त मुत्तहिद और राब्ते में रहें। जहांगीर तरीन की बीमारी पर हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं ने उनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। वाज़ेह रहे, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने नेक तमन्नाओं के इजहार के साथ जहांगीर तरीन के लिए फूल भी भिजवाए थे। रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग दाल हुकूमत करीब पहुंच गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रूसी और यूक्रेनी फौज में घमसान की लड़ाई इस वक्त जारी है। रूसी फौज ने चारों तरफ से शहर पर हमला कर दिया। रूसी फौज ने यूक्रेन के शहर मिलेतोपोल पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सदर ने मुल्क से इनखलाब में मदद की अमरीकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे, भागने के लिए सवारी नहीं, लड़ने के लिए असलहा चाहिए। आज मुझे आप शायद आखिरी बार जिंदा देख रहे हों। यूक्रेनी सदर का वीडियो पैगाम। साबिक यूक्रेनी सदर अपनी राइफल के साथ सड़कों पर निकल आए। किसी सूरत में मुल्क और कौम को छोड़कर नहीं जा सकता, ऐसा कहना था साबिक सदर का। यूक्रेन पर रूस का हमला। यूक्रेनी सदर ने मुल्क से इनखला में मदद की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि आखिरी दम तक लड़ेंगे, भागने के लिए सवारी नहीं, लड़ने के लिए असलहा चाहिए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने वीडियो पैगाम जारी किया। कहा, मुमकिन है आप मुझे आखिरी बार जिंदा देख रहे हों, मैं करीब में ही हूं। हम मुल्क का दिफा करते रहेंगे। रूसी फौज आज दार हुकूमत पर कब्जे के लिए फैसला कुन हमला करने वाली है। दूसरी जानिब साबिक यूक्रेनी सदर पेट्रियोपोरो अपनी राफेल के साथ सड़कों पर निकल आए। कहा, किसी सूरत मुल्क और कौम को छोड़कर नहीं जा सकता, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अगर रूस ने कब्जे की कोशिश की तो सड़कों पर लड़ेंगे। हम यूक्रेन को महफूज बनाएंगे और हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। दूसरी जानिब दुनिया भर से रूस के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। आलमी ताकतें और रहनुमा मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। आपको बताएं, यूक्रेन पर हमले के बाद रूस और मगरिब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन ने रूसी सदर पुतिन और वजीर खारजा पर बराह रास्त पाबंदियां लगा दी। जंग अजीम दोम के बाद अब तक की सबसे बड़ी जंग के बड़े असरा। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ इक्तिसादी महाज खोल दिया। रूसी इदारों के बाद बराह रास्त सदर पुतिन और वजीर खारजा पर इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी। अमेरिका ने सदर पुतिन के अमेरिका सफर पर पाबंदी का भी ऐलान कर दिया। रूसी वजारत खारजा ने रद्द-ए-अमल में कहा कि पुतिन और सरगई लारूफ पर पाबंदियां जाहिर कर रही हैं कि मगरिब कितना कमजोर है। इससे काबिल सलामती कौंसिल के इजलास में रूसी हमले की अमेरिकी मजम्मती करारदाद रूस ने वीटो कर दी। करारदाद के हक में 11 ममालिक ने वोट दिया। चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत गैर जानबदार
रहे और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस का यूक्रेन पर हमला, आलमी मंडी में तेल और सोने की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दो ममालिक के तनाज़े से जन्म लेने वाली महंगाई से दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के शहरी भी मुतासिर हो रहे हैं। सुहेब अब्बास की रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में जुमेरात को दिन का आगाज रूस के यूक्रेन पर हमले की खबर से हुआ, जिसके बाद न सिर्फ आलमी कारोबारी मंडियों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है बल्कि तेल की कीमतों में मजीद इजाफे के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला ऐसे वक्त में किया जब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मॉस्को में ही मौजूद थे। बाज़ मुबस्सरीन के मुताबिक इस जंग के सियासी असरात से ज़्यादा पाकिस्तान पर इसके मुआशी असरात मुरतब हो सकते हैं। जो ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस और सारी चीज़ें, लेकिन इससे कमोडिटी पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। रूस और यूक्रेन में एक बड़ी जो अहम चीज़ है वो गैस है, ऑयल है। इससे आलमी मंडी में भी गैस की और ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो अपने मुकामी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दुनिया के दीगर ममालिक के अलावा रूस और यूक्रेन से मुख्तलिफ अशिया और अजनास दरामद करते हैं। मुआशी माहिरीन इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि अगर यूक्रेन जंग तूल पकड़ती है तो पहले से ही महंगाई की चक्की में पिसने वाली पाकिस्तानी कौम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे का खासा असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हुकूमत को आलमी मंजरनामे को मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसियों को तरतीब देना होगी ताकि इसके मनफी असरात से मुल्क को बचाया जा सके। कैमरामैन सरदार अरशद के साथ सुहेब अब्बास, रोज न्यूज़, इस्लामाबाद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पेमवाम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया जबकि असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पेमवाम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस था। इलाके के मकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा और उन्होंने इलाके से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया। कराची पुलिस ने सहाफी अतर मतीन के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम अशरफ को गिरफ्तार कर लिया है। वजीर इत्तला सिंध सईद खनी ने दावा किया कि इंशाल्लाह कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। इस केस में पुलिस की काविशें काबिल तहसीन। इस तरह सिंध पुलिस पर अवाम के एतमाद में इजाफा होगा। कोयटा में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले मुजफ्फराबाद से ताल्लुक रखने वाले पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। मिर्जा शहजाद की रिपोर्ट। नमाज जनाजा में साबिक वजीर हुकूमत आजाद कश्मीर डॉक्टर मुस्तफा बशीर अब्बासी, SSP मुजफ्फराबाद यासीन बेग, पुलिस एहलकारान, सियासी और समाजी अफराद समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहीद सैयद अली असगर काजमी को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। साबिक वजीर हुकूमत डॉक्टर मुस्तफा बशीर अब्बासी, SSP मुजफ्फराबाद यासीन बेग ने शहीद को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश की। हमारे नौजवान ने, असगर ने भी मुल्क की खातिर मैं समझता हूँ कि जाम शहादत नोश की है। इस खानदान की पहले भी, इससे पहले बलूचिस्तान पुलिस के लिए 2-3 शहादतें ये पहले भी दे चुके हैं। शहीद के वालिद और दीगर लवाइकीन का कहना था कि इन्हें शहीद अली असगर काजमी की शहादत पर फख्र है। इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयां करके दुश्मन हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकता। मेरा बेटा जो है असगर शहीद अली असगर शाह जो है वो शहीद हुआ है। उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी है, लेकिन कभी पीछे नहीं हटने वाला काम किया उसने। इस मौका पर इस अज़म का इज़हार किया गया कि वतन अजीज के दफा और मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा मिर्जा शहजाद, रोज न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 2.25% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से 14 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 30,153 हो गई। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर के बाद अमवात का सिलसिला थम न सका। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस ने मजीद 14 अफराद की जान ले ली। मौलिक वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 30,153 हो गई, जबकि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,207 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 15,07,657 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 2.25% रिकॉर्ड की गई। एनसीओसी के मुताबिक पंजाब में 5,07,779, सिंध में 5,67,000, खैबर पख्तूनख्वा में 2,15,936, बलूचिस्तान में 35,322, गिलगित बल्तिस्तान में 11,461, इस्लामाबाद में 1,34,240, जबकि आजाद कश्मीर में 42,909 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,63,53,468 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 53,625 नए टेस्ट किए गए। अब तक 14,40,292 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 1,117 मरीजों की हालत तशवीश